Good morning, all. Just 1 second. So, we are going to start from Aristotle once again. I'm really very sorry. I apologize for the same that I was not able to upload the videos on daily basis. And yeah, it's a Diwali, so I have 1 or 2 days leave. So that's why I'm able to upload some videos. And I think further too it will be very difficult for me to upload the lectures on daily basis, but it's sure that twice in a week or thrice in a week I'll try my best to upload the lectures. I wish you all a very happy Diwali, and may Matarani enlightens your path with the light of love and knowledge. May Mata Saraswati, Mata Lakshmi bless you all. So have a fantastic Diwali for all of you. And yeah, so we are going to start Aristotle once again, as I've already uploaded some lectures, especially on Plato. Not some lectures, I have completed Plato, and so from today onwards, we are going to start Aristotle. Okay. A very small information about the channel. Actually, earlier I was uploading the lectures with the name of Dars Education. I was working with Dars. So currently, I am switched, and there is no any financial relations established between Dars and me. It is very important to announce. Right. So I have started working with another institution. Right. So I'll upload the lectures also, but because of some busyness, I've already told you. So it won't be possible to upload the lectures on daily basis, right? So have a great day, all, and we are going to start today about Aristotle. So in Aristotle, just 1 second, no? Yeah, sure. So in Aristotle, we are going to study about the you can see the concept of state, and after that we'll study the idea of slavery, the idea of citizenship. So today's lecture, we are going to cover especially the concept of state, which is given by Aristotle, and after that we will go for idea of slavery. You will be very surprised that why a person, especially Aristotle, why he has favored slavery and why he has given the idea of slavery. So don't worry, once you study about Aristotle now, so it's not the state like the same. Not today's state. Today's state का तो छोड़ो, उस टाइम का भी स्टेट का जो डेफिनेशन था, इवन स्टेट का जो डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, कोई भी डेफिनेशन. So Aristotelian state is completely different from all of other states theory, right? And after that we'll study the idea of citizenship. You can see, I'm very sorry, you can feel some noises because I'm shooting from my home, right? So you may face some problem, but please adjust. In some days, maybe further, it can be improved, right? So after that, we'll study the idea of property. So he has, once you study the idea of idea of citizenship of Aristotle, so you will find that he preferred not to tell who is not the citizen of, who is not the citizen of Greece, you can say. And he has given the idea of property, he has given the idea of justice, not so much elaborated as Plato has elaborated the idea of justice, but surely he has given. In idea of property, he has divided the property into two parts. Uh, Plato was against the property. He has given theory of the communism of property. He was not in the favor to acquire the property that one can acquire except only the, you can say, producer class. He was not in the favor
of acquiring the property for any class, especially for first class and second class, means for gold and silver. So you will remember that why I'm just why my terminology is the same, like gold and silver, so that you can remember that the persons who is especially having a reason, so he was called the man of gold, and the persons who were having especially courage, so they were the man of silver, right? Soldiers, you can say. So, and after that, we'll study the classification of constitution. So, we will study the classification of constitution once we will study the idea of citizenship. So, he has divided the state in six parts, three real and three, you can say, diluted form of those real states, right? So, we will study. You will be very surprised once again that he has studied more than 158 plus constitutions, right? And after that, he has classified the constitution, right? And after that, we will study the idea of revolution. Once you study the idea of revolution, so you will see that he has not only given the idea of revolution, he has told the state, he has told that how can a state be saved with the revolution, right? He has given the causes of revolution and how can a country be saved by with it, right? So we study about it. So, and after that, he has given the concept of state, and as I've already mentioned in the slides that there are two theories of state, right? And one is an organic theory. So which evolves itself, means there is no extra practice, extra effort is required to be developed. So that is called organic theory. And here the state is an end. Once you study the mechanistic uh, theory of state, so you will find it's all about today's state. In terms of I'm saying today's state, so you can find like the idea of Gandhi, the idea of Marx, right? So they were in the favor of where the end was indivisible. But once you study the idea of Plato, Aristotle, Hegel, and some other philosophers, so you will find that their end was state, right? So each and everything was for state only. So just let me explain about it. Just one second now. So I'm just explaining the same, and I think we will cover only the theory of state today. So just one second. Let me take the blank piece. Okay. So just see, you have already studied Plato, right? And currently, in today's lecture, we are going to study Aristotle, right? So in Plato, what we have seen? In Plato, we have seen that Plato was perfectionist. He was perfectionist. Right? He always favored the perfection. He always went for the far-reaching change, right? Uh, you will always see that he was always tend for the grassroots change. You can say, right? Uh, you will study that, especially Plato was a radical. He always went for best, right? Always went for best. And once you study Aristotle, that you will find that he was not a perfectionist. He went for the best possible. He never went for the far-reaching change. He always went for some changes, some changes which was possible.
uh, he never went for the grassroots change. He was not radical. Aristotle was not radical. He was conservative. Let me take an example. In Plato's theory of philosopher king, I've already told you that, and women, even he was the first feminist. Even a woman could be the philosopher king in the state of Plato, right? But uh, once you study the Aristotelian theory of citizenship, you will find even women and slaves, they were not supposed to be a citizen, right, of that state. And Plato always went for best, and Aristotle always went for the good, common good, you can say, right? What I've told you, the best possible. And he always went for the. He was not radical. He always went for the idea of golden mean. What is the mean? Mean you have studied might be in mass, the mean and mod, if you remember, modern mean. So don't think about mod. It's a mean. Mean means average. So he always suggested an average path. He always went for common sense. Common sense. And what about Plato? He always went for exceptional beauty, exceptional things, talent, right? So these are the things. What is the basic difference in between Plato and Aristotle? Though Aristotle, and one more thing, actually, Aristotle is called the father of political science. So, and once you see not only the Western political thought, right? Not only the Western political thought, but you can say the whole political thought, even yeah, it may be the Western political thought, Indian political thought, or any political thought. So that is no doubt impacted with the idea of Plato, right? But it is said that the whole Western political thought is either Platonic or anti-Platonic. It's non-Platonic, right? So, but what about Plato? So if Plato was so great, so why he is not considered the father of political science? Why Aristotle is considered father of political science? Because he has started studying polity as a science. मतलब पॉलिटी में अगर देखा जाए तो साइंस ऐसा आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट एक सिस्टमेटिक थियरी मिलेगी, ठीक है? एंड बेस्ट प्रैक्टिकल के लिए गए, बेस्ट प्रैक्टिकल विच इज प्रैक्टिकल. But when you compare Plato, the Plato was not practical. Practical होते तो so his state was not exist, right? So that's the thing. And we are going to see especially the idea of state. You can say the concept of state, which is given by Aristotle. So though I have proper slides and I have make the PPT, proper PPT, I'll share it with you. But let's try to understand, especially the idea of concept of state. I'm very much sorry that I'm going in a single language. So I promised you to be bilingual. So sometimes I forget. So I try to deliver it in Hindi as well, right? Hindi and English. So what is the idea of state? आप डिवाइड कर सकते हो इनको. लाइक सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो एरिस्टोटल ने ऑलरेडी कहा है कि द पर्सन हु डजंट नीड सोसाइटी, और यू कैन से
who doesn't need polity. He always say that man is political. Means man is a political animal. Man is a social animal. Man is a social animal. Right? What he says? He says the persons who doesn't who does not require society, who does not require state, he is either beast और गॉड. वो इंसान नहीं हो सकता फिर, जिसको रिक्वायर नहीं है किसी स्टेट की, या तो वो भगवान है या फिर वो शैतान ही है, बिल्कुल. ठीक है. एंड वंस यू स्टडी एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने समझाया है कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल था, एंड आफ्टर दैट ही इट इवॉल्व्स एज फैमिली, एंड आफ्टर दैट villages, and after that combination of villages, that is called city state. ठीक है. तो उन्होंने ऐसा बताया है कि सबसे पहले इंडिविजुअल एंड आफ्टर दैट ये इवॉल्वमेंट. बट ही सेज, ही फर्दर सेज दैट स्टेट इज प्रायर टू मैन. स्टेट इज प्रायर टू मैन. आई लेट यू अंडरस्टूड, डोंट वरी अबाउट इट. तो जो भी स्टेट है वो मैन से पहले. अभी हम देखेंगे कि इस तरीके से इवॉल्व हुआ एंड ऐसा उन्होंने क्यों बोला. ये तो सेम वैसा ही है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन मीन्स कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा. तो उनके कहने का मतलब भाई देखो, एक तरीके से मुर्गी पहले आई और अंडा बाद में. तो अभी आप सोचोगे, देखो ही सेज कि क्रॉनिकली, मतलब अगर आप क्रॉनिकली लेंगे तो मैन इज प्रायर टू स्टेट. मैन पहले है और स्टेट बाद में. अगर क्रॉनिकली लेंगे, क्रोनोलॉजिकली लेंगे, मतलब कालक्रम के अनुसार अगर लेंगे तो आदमी पहले आया और फिर स्टेट बना. बट अगर लॉजिकली लेंगे, लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू मैन. स्टेट इज प्रायर टू मैन. ठीक है. ये लॉजिकली है, मतलब स्टेट नहीं रहता तो फिर मैन कहां से आता. क्योंकि he says, he further says, man becomes man only in state. You should also think man becomes man only in state. मतलब कि आदमी आदमी कब बनता है, इंसान कब बनता है स्टेट में. अभी हम देखते हैं स्टेट क्या है. इतनी देर से स्टेट स्टेट चल रहा है, तो स्टेट एक्चुअल में है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो स्टेट, ये प्लेटो का भी स्टेट नहीं है. आई डोंट सपोज टू से इट. अभी तो आप ऐसा मान सकते हो कि अभी के तरह का स्टेट नहीं है. स्टेट का मतलब क्या समझते हो आप? स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, सीधी सी बात. हु इज रूलिंग ऑन अस, सो दैट इज कॉल्ड स्टेट. जो हम पे रूल कर रहा है, सो ही सिंपली ही इज एन स्टेट. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन, राइट. In the very first lecture I have already delivered the same. So what is state? So state क्या है? Who is ruling on us simply. ठीक है. Who is supposed to rule, मतलब जिसको हमने बोला है कि हम पे रूल करो. So once you study the common bill, so you will find it. But so state क्या है? अभी तक आपने देखा कि स्टेट तो ऐसा है तो जो हम पे रूल कर रहा है. अभी एरिस्टोटल ने बोला, देखो सबसे पहले मैन था, और यहाँ पे इनकी जो बेसिक नीड्स थी, मैन की जो बेसिक नीड्स थी वो क्या थी? बेसिक नीड्स क्या है? फूड एंड यू कैन से प्रोटेक्शन. बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यू कैन से राइटर्स, वो भी बोलते हैं कि देयर इज ओनली 2 नीड्स, बट देयर इज 3 नीड्स जो एरिस्टोटल ने बताया है. ये 3 नीड्स एरिस्टोटल ने बताया. ठीक है. फूड, प्रोटेक्शन एंड सेक्स.
सम से सेक्स इज नॉट बेसिक इसेंशियल नीड्स। इसेंशियल नीड्स का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ आपको भूख लगे और खा लो और जरूरत रहे तो फिर अपनी सुरक्षा कर लो। तो ऐसा भागते हुए अपनी सुरक्षा थोड़ी ना कर रहे हो और भागते हुए थोड़ी ना खा रहे हो। 2 मिनट की जिंदगी नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचोगे। सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। सो ये थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड है। जब इनकी नीड ये किस लेवल पे रिक्वायर्ड है? मैन के लिए। जब ये नीड्स, जब ये रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी, फिर आप फैमिली लेवल्स पे आते हैं, ठीक है। फिर आप फैमिली लेवल्स पे आते हैं। अच्छा, एरिस्टोटल को आप देखोगे तो एरिस्टोटल ने फैमिली को दो कैटेगराइज किया है। एक वाइफ्स, मतलब वाइफ, चिल्ड्रन, एंड द सेकंड थिंग इज प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, एंड स्लेव्स। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ठीक है। तो स्लेव्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, तो सो दैट्स द रीजन। अब यहाँ पर जो पर्सन है, जो मैन है, उसकी कुछ नीड्स बढ़ती हैं, राइट। उसकी क्या नीड्स बढ़ती है? मतलब यहाँ से आगे चल के जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन सेक्स था, यहाँ पे उसको क्लॉथ हो गया, ठीक है, स्टोरेज हो गया फूड्स के, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, क्लॉथ हो गया, स्टोरेज हो गया, एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स की कुछ और चीजें हैं वहां तक आएगा। मतलब फैमिली के लिए स्पेशली जो नीडेड है, ठीक है। तो विच रिक्वायर्स टू फैमिली, तो वो थिंग्स हो गई। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज, मतलब यहाँ पर आदमी H-3 है, मतलब ह्यूमन नहीं है वो, H-3 है, ह्यूमन -3 है। यहाँ पे वो इंडिविजुअल है, यहाँ पे वो मैन। एंड देयर आर ओनली 3 बेसिक नीड्स, फूड, प्रोटेक्शन प्लस सेक्स, राइट। एंड आफ्टर दैट उसको फैमिली की जरूरत पड़ी। फैमिली इज ऑल्सो नीड, ठीक है। तो मैन का इवॉल्वमेंट हुआ, मैंने आपको एक चीज नहीं बताया कि स्पेशली स्टेट्स को 2 तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है। किसी भी, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है, 2 तरीके के स्टेट्स को वो कैटेगराइज्ड किया गया है। तो जिसमें एक आती है मैकेनिस्टिक थियरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ स्टेट, एंड दूसरा है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। अच्छा, ऑर्गेनिक थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट में ये है कि स्टेट एक टूल की तरह है, इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिसको हम अपने, मतलब हम, मतलब इंडिविजुअल्स अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर आप देखोगे तो स्टेट जो हो गया वो मीन्स हो गया, ठीक है। मतलब स्टेट हमारी जरूरतों को पूरा करने का एक मीन्स हो गया, एक साधन हो गया, ठीक है। और हम क्या हो गए? एंड हो गए। मतलब हमारे लिए सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। स्पेशली अगर आप गांधी को देखो, ठीक है, अगर आप मार्क्स को देखो, तो क्या है यहाँ पर? इंडिविजुअल इज एन एंड, मतलब स्टेट तो कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है। बट ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में स्टेट ही क्या है? एन एंड। स्टेट इज एन एंड, and when state is an end, means each and everything, even not only each and everybody, each and everything, each and everybody is just an instrument, just a means to be an end। मीन्स स्टेट होने के लिए, स्टेट के लिए सारी चीजें हैं। तो ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट के समर्थक रहे हैं लगभग लगभग। आप जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ोगे उसमें से ज्यादातर लोग, लाइक वो प्लेटो हो, वो सॉक्रेट्स ने ऐसी कोई थियरी दी ही नहीं थी, तो मैंने आपको सॉक्रेट्स के बारे में बताया था। बट सॉक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, एंड लाइक ग्रीन, ठीक है, हीगल आप ले सकते हो। तो ये सारे लोग क्या है, इन्होंने कौन सी थियरी दी? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट खुद बना है, खुद इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि फैमिली, तो फैमिली के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है? तो जब इनको अदर थिंग्स की जरूरत पड़ी, जब एक्स्ट्रा बाकी चीजें रिक्वायर पड़ी, तो इनको फैमिली,
फैमिली में मैंने जैसे बताया आपको, फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, एक तो वाइफ प्लस चिल्ड्रन हो गया, दूसरे प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसी में स्लेव्स हैं। आई लेट इट एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, अभी आपको बस इतना समझने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले एच, आप एच माइनस थ्री ले सकते हो। एच माइनस थ्री, ये कोई मैथ नहीं है, बस सिंपल सा मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैन था जिसमें उसकी थ्री बेसिक नीड्स थी जो आपने देखा, एंड फिर उसके बाद मैन से इवॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ तो फैमिली बनी, जहां पर उनकी बेसिक नीड्स, ये सारी बेसिक नीड्स पूरी हुई, एंड कुछ अदर थिंग्स। अदर थिंग्स मतलब उनको स्लेव्स रिक्वायर पड़े, एंड स्टोरेज यू कैन से। ठीक है, एंड बाकी जो मैन की या फिर इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। एंड आफ्टर सम टाइम्स, ठीक है, फैमिली चेंजेस इनटू विलेज। जब वो विलेज में गए तो यहाँ पे उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई, मतलब एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प करना, तो प्रोटेक्शन में भी हेल्प हुई, एंड बाकी चीजें हुई। ठीक है, एक दूसरे से वो इंटरचेंज करने लगे, बात करने लगे, इवन यू कैन से इंटरटेनमेंट। ठीक है, इंटरटेनमेंट हो गया, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे भी हो रही, मतलब इनको, भाई इनको किसी चीज की जरूरत है नहीं, इनको पूरी फैमिली है, इनको प्रोटेक्शन मिला है, इनके पास स्टोरेज है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है विलेज के लेवल पे। ठीक है, अब देखो, अब बनता है स्टेट। कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज आप बोल सकते हो, मतलब वो H2 था, H-2 और H-1। H-1 में क्या बना? विलेज। कॉम्बिनेशन ऑफ, अभी विलेज बना, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज जिसको स्टेट बोलते हैं। थोड़ा सा छाप छाप लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे ह्यूमन बन गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ विलेज बने जिसको स्टेट बोला इन्होंने। तो स्टेट में ये सारी नीड्स तो ठीक थी, ये सारी नीड्स फुलफिल हो रही थी, बट जनरली व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट कि यहाँ पर बेनोवलेंसी आई। यहाँ पर लोगों ने दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया। यहाँ पे होल इज प्रायर टू मैन, होल इज प्रायर टू मैन। वो बताते हैं यहाँ पे पर्सन अभी इतनी देर से वो क्या था, ही वॉज अ ह्यूमन बींग इन अदर स्टेट्स। वो सिर्फ बींग्स था, वो सिर्फ ह्यूमन बींग था, बट अभी क्या हो गया, वो होल प्रोसेस वॉज बींग ह्यूमन, अभी वो ह्यूमन हुआ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ही सेज ना कि मैन्स बिकम मैन, मैन बिकम्स मैन ओनली इन स्टेट। ठीक है, तो अब समझने वाली बात ये है, देखो लेक्चर आई थिंक बड़ा हो रहा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि उनके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ स्टेट ऐसी सिचुएशन है जहां पे आके व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है। ठीक है, जहां पे आके पर्सन जो है वो दूसरे के बारे में सोचता है, परोपकार के बारे में सोचता है, बेनोवलेंट हो जाता है, उससे मतलब खुद से पहले वो दूसरे के बारे में सोचेगा, भलाई के बारे में सोचेगा, औरों के बारे में सोचेगा, स्टेट के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या है, वो स्टेट की सिचुएशन है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं समझ पाओगे एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट। इसमें है कि सपोज आज के 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले आप यहाँ मिलियंस लग जाते हैं, तो आप ये सोच सकते हो आदमी मैन था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ 5 साल पहले, तो आप यहाँ पे फैमिली बन गई, फिर 3 साल पहले फिर क्या बन गया भाई, फैमिली से विलेज बन गया, और फिर कुछ साल पहले क्या बन गया, स्टेट बन गया। आप ऐसा इस तरीके का इवोल्यूशन समझ सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये टाइम टेस्टेड मशीन तो है, टाइम टेस्टेड मैकेनिज्म तो है,
बट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस सिचुएशन में भी कुछ लोग स्टेट की कंडीशन पे थे। मतलब यहाँ पे आप ऐसा मत समझो कि एक पूरी भीड़ कन्वर्ट हो रही है फैमिली में, पूरी भीड़ कन्वर्ट हो रही है विलेज में, पूरी पूरी की पूरी भीड़ कन्वर्ट हो रही है किसमें, स्टेट में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एरिस्टोटेलियन स्टेट में ऑल पर्सन्स एग्जिस्ट, ऑल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन सेम टाइम। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन स्टेट की अवस्था में हो सकता है ये विलेज में हो सकता है ये फैमिली के सिचुएशन पे और हो सकता है ये कहाँ पे ये अभी मैन ही ये बिल्कुल इसके अंदर इंप्रूवमेंट ना ये सिर्फ फूड, प्रोटेक्शन और सेक्स के लिए ही पागल हुआ तो हो सकती हैं ये सिचुएशंस आ सकती हैं। मतलब एक ही स्टेट में, ये कोई टेरिटोरियल बाउंड्री वाली स्टेट नहीं है। मतलब ये टेरिटोरियल फॉर्म नहीं है कि इसमें धीरे 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 चल के सारे लोग स्टेट में पहुंच जाएंगे। नो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। लाइक स्टेट, और उन्होंने बोला है कि हु इज इन द स्टेट ऑफ स्टेट, जो स्टेट की अवस्था में है, जो स्टेट है, सिर्फ वही सिटीजन हो सकता है। ठीक है, वही सिटीजन हो सकता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो एक अलग बात हो गई कि कुछ लोग स्टेट की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल बिल्कुल माइंड के हिसाब से सोच सकते हो। मतलब किसी का जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ है बहुत कम है, ये टेरिटोरियल फॉर्म ऑफ स्टेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वाली स्टेट नहीं है, टेरिटोरियल फॉर्म स्टेट नहीं है, ये सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट है। इसी स्टेट में लाखों लोग हैं, इन लाखों लोगों में से कुछ अभी सिर्फ फूड, सेक्स, प्रोटेक्शन के लिए टहल रहे हैं। तो वो क्या है, वो कौन सी स्टेट में है, वो सिर्फ अभी मैन है। और उसके बाद जो थोड़ा सा इससे आगे उठ के जाएगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा, वाइफ्स के बारे में सोचेगा, मतलब अपने परिवार के बारे में सोचेगा, तो ही इज इन द स्टेट ऑफ फैमिली। थोड़ा सा और आगे निकल गया, थोड़ा दूसरों के बारे में भी सोचने लगा, थोड़ा आसपास के लोगों के बारे में भी सोचने लगा। ठीक है, बेसिक नीड्स को पूरी करने लगा, इंटरटेनमेंट के लिए भी जाने लगा, तो वो इन द स्टेट ऑफ विलेज। लेकिन हम दूसरे के बारे में सोचने लगा, पूरे स्टेट के बारे में सोचने लगा। हमारे पास अगर थोड़ा सा है, कुछ भी है, तो हम पहले दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, फिर अपने बारे में उसके लिए सोच रहे हैं। तो वो सिचुएशन है स्टेट की। वो की स्टेट समझ में आया होगा। स्टेट एक टेरिटोरियल फॉर्म नहीं है, स्टेट सिर्फ एक मेंटल कंडीशन है, मेंटल स्टेट है। ठीक है, आप कौन सी स्थिति पे हो, तो स्टेट वो है, वो समझने की कोशिश करो। और वो एरिस्टोटल बोल रहे हैं कि जो स्टेट के स्टेट में रहेगा सिर्फ वही रूल कर सकता है। उनके कहने का मतलब ये है कि सपोज जो विलेज की स्थिति में है, मतलब ठीक, जो विलेज की स्थिति में है वो अगर रूल करेगा तो फिर क्या करेगा, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, फिर वो अपने बारे में सोचेगा। अपने बारे में सोचेगा तो करप्शन करेगा। जैसे अगर आपको लगे कि जो यहाँ पे लीडर्स वगैरह बनते हैं, जो नेता, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, लीडर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये जो भी है, जितने भी ये लोग हैं, ठीक है, आप इनको ये मान सकते हो कि ये स्टेट के लेवल में नहीं थे, इनका मेंटल कंडीशन, मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा हुआ नहीं था, ये स्टेट की सिचुएशन में थे नहीं। और इसी वजह से सिर्फ यही एक रीजन था कि ये विलेज की ही कंडीशन में थे। लोगों ने सोचा कि ये स्टेट की कंडीशन में थे और इनको चुन लिया, इनको हमने एक अच्छे पोस्ट पे भेज दिया, ठीक है, एक थ्रोन पे बैठा दिया, और फिर वहां पे इन्होंने करप्शन चालू कर दिया, क्योंकि इनके अंदर बेनोवलेंसी थी ही नहीं, इनके अंदर परोपकारिता की कुछ भावना थी ही नहीं। खुद के लिए सोच रहे हैं, खुद की फैमिली के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये है स्टेट। ठीक है, तो स्पेशली अभी मैं सोच रहा हूँ कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ना हो, इसलिए यहीं भी स्टॉप करते हैं इसको। ठीक है, आगे नो डाउट हम एरिस्टोटल को कंप्लीट करेंगे कुछ आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, इनकी आइडिया ऑफ स्लेवरी पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ स्लेवरी में आप देखोगे कि स्लेवरी को इन्होंने बोला है कि स्लेवरी नेचुरल है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे एरिस्टोटल में, एरिस्टोटल बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वो
इनइक्वालिटीज के फादर बोले जाते हैं, प्रोफाउंडर ऑफ इनइक्वालिटीज, ये कोई अच्छी बात नहीं है जो इनइक्वालिटीज का फादर बोला जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, आई मीन टू से। सो बट ही सेज ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, ट्रीट इक्वल इक्वली। उनके कहने का मतलब ये है कि जो इक्वल है, हु हु इज इन द स्टेट ऑफ स्टेट, मतलब सारे लोग जो स्टेट की कंडीशन में उनको इक्वली ट्रीट करो, जो विलेज की कंडीशन में उनको इक्वली ट्रीट करो, जो फैमिली की सिचुएशन में है उनको इक्वली ट्रीट करो, इन सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट मत करो। एक जैसा ट्रीट करोगे तो फिर इश्यूज होंगे। फिर क्या इश्यूज होंगे आप ये बताओ, आप खुद सोचो। आपको हो सकता है ये लगे कि एरिस्टोटल थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि जिसके पास मतलब कि आ, किसी को भी सपोज एक बच्चा है वो पढ़ने में इतना अच्छा है, 99 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100, ठीक है, और एक बच्चा है फेल हो गया, 3 मार्क्स लाया, 0 मार्क्स लाया, तो क्या करोगे? यू आर सपोज टू ट्रीट देम इक्वल। वो यही बोल रहे हैं कि भाई 0 0 वालों को एक साथ ट्रीट करो, और जो 99 ला रहे हैं उनको एक जैसा ट्रीट करो, उनको इस तरीके से ट्रीट करो, ठीक है। तो ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनइक्वल इक्वल अनइक्वली। इफ यू आर ट्रीटिंग ईच एंड एवरीबडी इक्वली, सो इट्स अनजस्टिस, राइट। सो ये उनकी थियरी है। आगे चल के आप थियरी ऑफ रिवोल्यूशन भी पढ़ोगे, तो विल स्टडी इन फर्दर लेक्चर्स। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू।